Morning students, the third paper of your mathematics is numerical analysis. The syllabi of numerical analysis is the same pattern is followed, that is there are 4 units. In the first unit, first 3 chapters are included, that is finite difference operators, interpolation with equal intervals and interpolation with unequal intervals. In second unit, we have central difference, interpolation formula and probability distribution. In unit 3rd, there are 2 chapters again, numerical differentiation and eigenvalue problems. And in the 4th unit, we have remaining 2 chapters, that is numerical integration and numerical solution of ordinary differential equation. Let's start with the first chapter. What's that? It's finite difference operator. What is finite difference operator? As the name indicates, there is difference. Difference means we are going to take difference between 2 values. Difference तो 2 values में ही होगा. Is it right? And the next term is operator. अगर हमारे पास operator आ रहा है, means हमारे पास कोई domain भी होगी और हमारे पास कोई range भी होगी. Is it right? Or we can say that हमारे पास कोई operator होगा, let it be f, or we can say function which starts from x to y as such. What's that? कि let y is equals to f of x. मतलब अगर कोई x को belong करेगा, that is for x belongings to x, हमारे पास एक y आएगा. किस तरह से? Such that y is equals to f of x. यही लिया है हमने. Let y is equals to f of x be a function of x and corresponding to every value of x in the domain. In the domain means from here, that is यहाँ पर इन्होंने x की वैल्यू ले रखी है from the closed interval a to b, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी भी आ रही है ना, that is a and b are included, that is x varying from a to b including a and b. There exist one or more values of y. यहाँ पर हमारे पास या तो एक वैल्यू होगी या more values of y होंगे, such that हमारे पास y is equals to f of x है. बेसिकली इस चैप्टर में हम डील क्या करेंगे? द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस. The calculus of finite difference deals with the changes in the value of the function. मतलब function क्या है हमारे पास? y is equals to f of x. अब y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पर. Means independent variable क्या हुआ हमारा? Independent variable हमारे पास क्या हुआ? x. And dependent variable हमारे पास क्या हुआ? y. तो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा. दैट इज अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं तो हमारा y चेंज होगा. दैट इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन. दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यही लिखा है हमने. द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस डील्स विद द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन ड्यू टू चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इज इट राइट? Now there are some definitions which we are going to discuss, that are definitions that are, first is argument and entry. What does argument and entry stands for? The same case, let y is equals to f of x. f of y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर. तो y is a function of, be a function of x. then जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, then the independent variable, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा इसको हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड एज एन आर्ग्यूमेंट ऑफ फंक्शन. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज एन आर्ग्यूमेंट ऑफ द फंक्शन. एंड y क्या है? वैल्यू ऑफ द फंक्शन. एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन is called entry. Is it right? Same is the case here. Example, let if suppose y is equals to f of x be a function of x. ठीक है.
x and the corresponding values, x है तो हमने let it be x की वैल्यूज मान ली a plus h, क्योंकि डिफरेंस आ रहा है तो एक बार अगर सपोज करो 1 है तो फिर 2 आएगा, तो सेम एज इट इज हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया कि x की वैल्यू a है, देन a प्लस h है, देन a प्लस 2h है, एंड सो ऑन। देन इसके कॉरस्पॉन्डिंगली x के कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यूज क्या होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो हमारी y की हैं वो क्या ले ली मैंने, लेट इट बी y ऑफ a प्लस h, y ऑफ a प्लस 2h एंड सो। तो ये क्या बन जाएंगी, ये हमारे पास क्या बनी, x की वैल्यू a प्लस h, a प्लस 2h, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये हमारे पास क्या बनेगा, बेसिकली आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और इन आर्ग्यूमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंगली जो वैल्यूज आ रही है ये फंक्शंस है, ये फंक्शन की वैल्यूज हुई, दैट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो ये क्या बनेगी हमारे पास, एंट्रीज। इज इट राइट? If you find any doubt till now, you can discuss in YouTube comment box. Is it right? The next definition is interval of differencing. It's interval of differencing. As the name indicates, intervals of differencing है। अभी हमने फर्स्ट डेफिनेशन में क्या करा था, x की वैल्यू सपोज करी थी a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h एंड सो ऑन, यही लिया था ना हमने। तो दैट आर आर्ग्यूमेंट्स, जो हमने आर्ग्यूमेंट्स कंसीडर करे थे, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, डिफरेंस बिटवीन टू consecutive values of argument x is called interval of differencing. Is it right? It is called as an interval of differencing. अब जो लास्ट एग्जाम्पल कर रहा था, दैट इज विच आई हैव मेंशन्ड अबव, इसमें दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज लो, लेट इट भी हम फर्स्ट टू वैल्यूज लेते हैं, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, h। अगर मैं इन दोनों को ले लेती हूँ तब भी इसका डिफरेंस क्या होगा, h। तो वही मेंशन है in this example, the interval of differencing is the interval of differencing is h. Is it right? Interval of differencing हमारे पास क्या आ गई, h. Now here comes the third definition, that is forward difference, and fourth comes backward difference. ठीक है, what is forward difference? Forward means हम forward जा रहे हैं, that is अगर x की वैल्यू a है तो नेक्स्ट क्या होगी, a प्लस h। ठीक है ना, अब इनका डिफरेंस लेना है, तो दैट इज f ऑफ a प्लस h में से f ऑफ a माइनस करा एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस। अगर हम इसको फॉरवर्ड डिफरेंस कहते हैं तो वी इंडिकेट इट एज डेल्टा ऑफ f ऑफ a। तो जनरली जो फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा वो क्या होगा, डेल्टा ऑफ f ऑफ x, दैट इज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ x इज f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। क्योंकि x की वैल्यू इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, या ये ऐसा नहीं होता कि वो हर बार a ही दे हमें, इट कैन चेंज ऑल्सो, देयरफॉर हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं। इज इट राइट? फॉरवर्ड से समझ आया, वी हैव टू वन स्टेप फॉरवर्ड मीन्स अगर x है तो उसके आगे वाली वैल्यू x प्लस h होगी। इज इट राइट? तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर h is the interval of differencing, and del is called forward difference
operator. Is it right till now? Next comes backward difference operator. Backward means अगर पहला x है तो उससे पहले वाला क्या होगा, x माइनस h, मतलब बैक जाना. अगर a है तो उससे बैक स्टेप क्या होगा, a माइनस एच, वेयर h इज एन इंटरवल ऑफ डिफरेंस है. अब इसको हम डेल से डिनोट करते थे, करेंगे इसको भी हम डेल से, बट इट वुड बी इन बैकवर्ड. दैट इज बैकवर्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, सेम एज इट इज वेयर h is the interval of differencing and is the backward difference operator. Is it right? इतनी बात समझ आए. अब हमारे पास क्या आता है, अगर हमारे पास लेट इट बी y of a plus h, y of a plus 2h and so on, let it be y of a plus nh, be the entries of the function y is equals to f of x. अभी हमने क्या निकाली, एंट्रीज, तो ये आर्ग्यूमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंगली होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग टू आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे आर्ग्यूमेंट्स, दैट इज a प्लस h, a प्लस 2h से लेकर a प्लस nh रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो डिफरेंसेस क्या होंगे, दो कॉन्जुगेटिव्स का डिफरेंस लेना ना हमने, वी हैव टू टेक टू कॉन्जुगेटिव डिफरेंस, दैट इज दो कॉन्जुगेटिव का डिफरेंस लेंगे तो y ऑफ a प्लस h का y ऑफ a से लेंगे, y ऑफ a प्लस 2h का y ऑफ a प्लस h से लेंगे, एंड सो ऑन. देयरफॉर देन द डिफरेंसेस, जो डिफरेंसेस आएंगे हमारे पास कौन से होंगे, डिफरेंसेस y ऑफ a प्लस h माइनस y ऑफ a, y of a plus 2h minus of y of a plus h, y of a plus 3h minus of y of a plus 2h and so on. कहाँ तक जाएगा, y of a plus nh और उसके correspondingly y of a plus n minus 1 of h. अब जब भी हम लेते थे by the definition फॉरवर्ड लेते थे तो del of f of a क्या आ रहा था, f of a plus h माइनस एफ ऑफ ए. तो सेम एज इट इज यहाँ क्या है, y ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ y ऑफ ए, तो ये क्या बनेगा, डेल ऑफ y ऑफ ए. यही हो रहा है ना यहाँ पर भी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली डेल लग रहा है ना, तो सेम एज इट इज हम इसमें करेंगे. तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, डेल ऑफ y ऑफ ए प्लस एच, डेल ऑफ y ऑफ ए प्लस 2h एंड यहाँ क्या आ जाएगा, डेल ऑफ y ऑफ ए प्लस n माइनस 1 ऑफ h. Is it right? Now these are called, these differences are called first forward differences. These are called first order differences. अब अगर मैं इनका डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस का डिफरेंस ले लूँ, दैट इज द डिफरेंस ऑफ इनका डिफरेंस ले लूँ, इनका डिफरेंस ले लूँ, तो मीन्स डेल इसमें इंक्लूड हो गया, तो हमारे पास क्या मिलेगा, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस. मैं क्या कह रही हूँ, दैट इज अगर मैं डेल ऑफ y ऑफ a प्लस h का और डेल ऑफ y ऑफ a का डिफरेंस ले लूँ तो वो क्या बनेगा, डेल स्क्वायर y ऑफ a, मतलब डेल लग जाएगा ना, इसके ऊपर डेल लगेगा. हमारे पास क्या होता है, डेल और जो यहाँ वैल्यू होती है वो, तो यहाँ क्या वैल्यू है, डेल ऑफ y, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, डेल स्क्वायर y ऑफ a. तो अगर ऐसे होता है, नेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा, डेल ऑफ y ऑफ a प्लस 2h माइनस डेल ऑफ y ऑफ a प्लस h. इसको हम क्या कहेंगे, डेल ऑफ y ऑफ a प्लस h, यही आएगा ना, दैट इज डेल स्क्वायर
y of a plus h. इसको हम क्या कहते हैं? These differences are called as the second forward differences. These are called as second forward differences. Similarly, अगर हमें higher order का चाहिए difference, that is let it be of del cube, तो क्या होगा? अगर इनको difference लूँगी, that is del square of y of a plus h minus del square of y of a is del square of y of a, that is del cube of y of a. ये हमारे पास क्या बन गया? थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस. ठीक है, तो जनरली मुझे लिखना हो, जनरली आई हैव टू राइट इट एज, वी विल राइट इट एज, सपोज करो ये n है, तो डेल n y ऑफ x. ठीक है, तो क्या हो रहा है? एक कम हो रहा है, 2 हो रहा है ना, दैट इज 3 minus 1, तो आई कैन राइट डेल n minus 1 y of x plus h minus del n minus 1 y of x. Is it right? जनरली इस केस में हम क्या करेंगे? जो y of a होता है, इट इज कॉल्ड एज एन लीडिंग टर्म. ठीक है, एंड del of y of a, del square of y of a, del cube of y of a are known as leading difference. Is it right? Any doubt?